Hello and welcome to JK Civil Services. This is our third lecture on science and technology, and in this lecture we will try to cover up some of the defense system topics that were in news since from last 1 year, और जो भी other topics थे हमारी news में उनको भी हम cover करेंगे, and the important topics will be covered in this lecture series related to the science and technology. So let's start from the first topic, that's about the quantum dots. ये quantum dots होते क्या है? अगर हम पहले बात करेंगे एक नैनोमीटर की, 1 nanometer is equal to 10 raised power minus 9 meter. So the size of these nanoparticles is small, that's up to the 10 raised power minus 9 meter is the size of these nanoparticles. अगर हम बात करें भाई क्वांटम डॉट्स की, ये क्वांटम डॉट्स होते क्या है? ये क्वांटम डॉट जो है ये फ्लोरोसेंट सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल्स है. क्या है? फ्लोरोसेंट सेमीकंडक्टर नैनो crystals. क्या है? fluorescent semiconductor nanocrystals. And what are these fluorescent semiconductor nanocrystals? They are producing a bright light of radiation. They produce a bright light of radiations. And these quantum dots, when you talk about these quantum dots are nanoparticles through which ultraviolet radiation is passed and they will emit different colors. जब भी इन nanoparticles में ultraviolet radiations को पास किया जाता है और ये ultraviolet radiations क्या है? ये different colors को emit करते हैं, और ये जो different colors है ये different colors से predict करते हैं size of the quantum dots. These different colors predict the size of the quantum dots. When we talk about these quantum dots are, for example, I will tell you about the quantum dots. These quantum dots tell us how many atoms are included in the quantum dot. कितने atoms quantum dot में include हैं, and these quantum dots determine their size and the size of the quantum dot. और ये quantum dot ही size करते हैं, determine करते हैं size of the quantum dot, and ये वो quantum dot determine करता है size of the color emitted. कौन सा color emit किया जाता है वो यही quantum dots डिटरमाइन करते हैं. और ये जो क्वांटम डॉट्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम विबग्योर की बात करेंगे, विबग्योर ठीक है, तो यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है. इट मीन्स दैट द वायलेट इट इज स्मॉलर इन साइज. सो दीज nanoparticles through violet they emit less radiations and the size is small, and this is red and it has larger size. So through red these ultraviolet radiation they passes different colors, and through red they possess the maximum colors. और यही maximum color इसका predict करता है size of the किसका? इसका quantum dot का. और हम जब red की बात करेंगे, red का जो है larger size है. और जो ये quantum dots है these are nanoscale particles. ये quantum dot जो है ये nanoscale particles है और जो ट्रांसपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. these nanoscale particles transport electrons. ठीक है, और जब भी अल्ट्रावायलेट रेज हिट करते हैं इन नैनो पार्टिकल्स को, दे इमिट डिफरेंट कलर्स. व्हाट दे इमिट? दे इमिट डिफरेंट कलर्स एंड नैनोस्केल पार्टिकल्स दैट ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अगर हम नैनो डॉट्स की बात करेंगे, ये नैनो डॉट्स यूज़ कहाँ पे होते हैं? ये हमारे LEDs LCDs में यूज़ होता है, बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, हमारे ट्रांजिस्टर्स यूज़ में होता है. नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा है. और हमारे जो है फॉर एग्जांपल जो हमारा रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द ट्रांजिस्टर्स और द सर्किट्स उनमें यूज़ किया जाता है. ठीक है, अगर हम बात करेंगे लाइक बेटर नेटवर्क सिग्नल्स की, उसमें भी यूज़ किया जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वांटम डॉट्स. ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक. ये भी रिलेटेड किसके? नैनो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है. जो भी हम बात करेंगे यहाँ पे है नैनो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड. और जो टर्म्स थे ये रिसेंटली न्यूज़ में थी. अगर हम नैनो फ्लेयर्स की बात करेंगे, नैनो स्पॉन्ज की बात करेंगे, नैनो चिप्स की बात करेंगे, इनको एग्जाम में पूछा जा सकता है. अगर हम नैनो फ्लेयर्स की बात करें, ये जो नैनो फ्लेयर्स है, नैनो फ्लेयर्स यूज़ किस में जाते हैं? दीज आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. जब आपको ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर किया जाता है तो वहाँ पर नैनो फ्लेयर्स भी यूज़ किए जाते हैं. और अगर हम बात करेंगे नैनो स्पॉन्ज की, ये जो नैनो स्पॉन्ज है, नैनो स्पॉन्ज क्या है? यूज टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी. दीज नैनो स्पॉन्ज आर यूज टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी. एंड these nanochips are used to view the arteries and thereby altering of any blockage. अगर आपकी बॉडी में कोई भी ब्लॉकेज, कोई भी वीन है, कोई भी आर्टरी ब्लॉक हो रही है, तो ये जो नैनो चिप्स है वो उस आर्टरी या वीन को व्यू करते हैं और उसको देख के वो आपका जो है ब्लॉकेज को रिमूव करता है. कौन? नैनो चिप्स. So it can be asked in the examination that what are nanoflares? These nanoflares are used for the treatment of कैंसर में यूज़ किए जाते हैं. और अगर हम नैनो स्पॉन्ज की बात करें, इनको यूज़ किया जाता है टू रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी. और अगर हम नैनो चिप्स की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? ये आर्टरीज को व्यू करते हैं और देयर बाय ऑल्टरिंग ऑफ एनी ब्लॉकेज. और अगर कोई ब्लॉकेज है आपकी बॉडी में, कोई भी वीन है, कोई आर्टरी ब्लॉक है आपकी बॉडी में, उसको रिमूव करने के लिए नैनो चिप्स यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, सो दिस अबाउट दिस नैनो टेक्नोलॉजी
टर्म्स। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अब एडवांटेज इन यूटिलाइजेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर हम देखेंगे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में नैनो टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। अगर हम बात करें अपने बैटल डिस्प्ले स्क्रीन्स की, फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन्स या हमारी टीवी स्क्रीन्स, एलसीडी एलईडीज़, इससे पहले जो होता था सीआरटी कैथोड रे ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे, उनमें जो पिक्चर क्वालिटी थी वो इतनी बढ़िया नहीं थी। और जब हमारे पास ये नैनो टेक्नोलॉजी आया है और उस नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे ये चीज़ें बेटर डिस्प्ले स्क्रीन हुआ है, लाइक दैट ऑफ इन लैपटॉप्स, देयर इन सिस्टम्स, देयर इन एलसीडीज एलईडीज़ में बेटर डिस्प्ले सिस्टम है। इट्स बिकॉज ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। और ये किसकी वजह से? यहाँ पे नैनो क्वांटम डॉट्स की वजह से है। जैसे हम कार्बन नैनो ट्यूब्स यूज़ करते हैं, ग्रेफाइन यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमारा जो है बेटर डिस्प्ले स्क्रीन होता है। ठीक है, बात करेंगे रिड्यूसिंग द साइज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर्स। जब हम इंटीग्रेटेड आईसी सर्किट्स की बात या ट्रांजिस्टर्स की बात करेंगे, इनका जो रिड्यूस हुआ है साइज, इट्स बिकॉज ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी, बिकॉज द साइज ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ पार्टिकल्स इज स्मॉलर, बिकॉज 1 नैनोमीटर इज कॉल्ड 10⁻⁹ मीटर। और इसकी वजह से आपका जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ट्रांजिस्टर्स का जो साइज हुआ है वो रिड्यूस भी हुआ है। और अगर इससे पहले देखोगे, आपके जो ट्रांजिस्टर्स या सर्किट्स का जो ये आपका साइज था वो बहुत ही ज़्यादा था, और नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से इन चीज़ों का साइज़ भी कम हो गया है। जब इन चीज़ों का साइज़ आपको कम हो गया तो आपके जैसे स्क्रीन डिस्प्ले तो आपके प्रोडक्ट का भी साइज़ कम होता है। ठीक है, और ये रिड्यूस करता है पावर कंजप्शन। अगर हम बात करेंगे पहले टीवीज़ में, जहाँ पे सीआरटीज़ हुआ करते थे हमारे घरों में, कैथोड रे ट्यूब्स की टीवीज़ होते थे, उनमें जो क्या है पावर कंजप्शन उनमें ज़्यादा था। अगर अब एलसीडीज़ एलईडीज़ की बात करेंगे, वहाँ पे जो आपका वो जो पावर कंजप्शन है वो कम है। इट्स बिकॉज ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी या क्वांटम डॉट्स की वजह से। अगर हम सर्किट और इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करेंगे, वहाँ पे नैनो वायर्स यूज़ होते हैं, और उनकी वजह से उन ट्रांजिस्टर्स का जो साइज़ है रिड्यूस होता है। ऐसे पावर कंजप्शन की बात करेंगे तो क्वांटम डॉट्स की वजह से पावर कंजप्शन कम होता है। और अगर हम बेटर नेटवर्क सिग्नल्स की बात करेंगे, जब इन बेटर नेटवर्क सिग्नल्स हमें आता है, किसकी वजह से बेटर नेटवर्क सिग्नल्स आता है? इट्स बिकॉज ऑफ दिस नैनो पार्टिकल्स। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। अगर हम बात करेंगे अब अग्नि प्राइम की, ये जो अग्नि प्राइम आपका मिसाइल है, ये इंडिया का न्यूक्लियर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में है। और कौन कौन है? एक तो अग्नि प्राइम, और दूसरा है आपका पृथ्वी। और अग्नि प्राइम और पृथ्वी जो आपका है, ये आपके क्या है, कंट्री के 2 मेन न्यूक्लियर मिसाइल्स है। और अगर हम अब अग्नि की बात करेंगे, ये जो अग्नि है, ये अग्नि आपका यूज़ करता है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन करता है यूज़। आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन यूज़ करके आपका जो है आपके डिलीवर करता है वार हेड को, कहाँ पे? आपके टारगेट के पास। अगर ये मिसाइल है तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल यूज़ करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसका अगर टारगेट ये है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन यूज़ करेगा टू डिलीवर द वार हेड ऑन द टारगेट। कौन? अग्नि प्राइम यूज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन टू डिलीवर वार हेड्स ऑन द टारगेट। और उन्हीं को हम बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं, किसको? जो यूज़ करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन टू डिलीवर द वार हेड ऑन द टारगेट, उसको हम बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। और ये अग्नि प्राइम जो है, ये एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। और हमारी कंट्री में कौन से 2 ऐसे मिसाइल है जो न्यूक्लियर मिसाइल है? एक तो अग्नि प्राइम है और दूसरा पृथ्वी है। और जो आपका अग्नि प्राइम है, एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, और जिसकी रेंज कितनी है? 2000 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे जो अग्नि प्राइम है, ये एक कैनिस्टराइजेशन टेक्नोलॉजी पे यूज़ किया जाता है। और ये कैनिस्टराइजेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये लॉन्च करता है मिसाइल को क्विकली, लॉन्चिंग ऑफ द मिसाइल क्विकली। ठीक है, बिकॉज जो ये कैनिस्टराइजेशन टेक्नोलॉजी है यूज़ करता है प्रीपेयर्ड मिसाइल यूज़ ही करता है। जो प्रीपेयर्ड मिसाइल है, ऑलरेडी डन जो मिसाइल होता है, उसको यूज़ करता है। ठीक है, और जो ये है कि अग्नि प्राइम है, इसको किसने बनाया है? इसको डीआरडीओ ने बनाया है। किसको? अग्नि प्राइम को डीआरडीओ ने बनाया है। और ये जो आपका अग्नि प्राइम मिसाइल है, ये अग्नि प्राइम मिसाइल आपका जो है, ये सक्सेसर है किसका? अग्नि 1 का, और अग्नि 2 का सक्सेसर कौन है? अग्नि प्राइम इज द सक्सेसर ऑफ अग्नि 1 एंड अग्नि 2। और इसको किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया है। और ये जो आपका अग्नि प्राइम है, ये अग्नि प्राइम आपका क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, या इसको हम ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल भी बोलते हैं। किसको?
अग्नि प्राइम को। और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल क्या होता है, इसको लॉन्च किया जाता है फ्रॉम द ग्राउंड और फ्रॉम द सी। और इसको ये टारगेट, स्ट्राइक टारगेट कहाँ पे करना होता है, ग्राउंड या लैंड पे इसको टारगेट भी करना होता है। उनको हम सरफेस टू सरफेस या क्या बोलते हैं, उसको हम ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल बोलते हैं। और अगर हम बात करेंगे सम ऑफ द एग्जांपल्स हमारी कंट्री में कौन कौन सा सरफेस टू सरफेस मिसाइल, लाइक अग्नि है, ब्रह्मोस है, पृथ्वी है, और ये क्या है हमारे सरफेस टू सरफेस मिसाइल। और अगर हम ब्रह्मोस की बात करेंगे, आपको जो ब्रह्मोस है ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कौन सा, ब्रह्मोस आपका वर्ल्ड का सुपर फास्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। कौन, ब्रह्मोस। सो दिस इज ऑल अबाउट द अग्नि प्राइम। अब बात करते हैं आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की। ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ये बिलोंग करता है किसको, ये इजराइल को बिलोंग करता है। और ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है इंडिया ने लेटेस्टली जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वहाँ से मंगवाई है बिकॉज ऑफ इट्स इंडियाज डिफेंस सिस्टम, ठीक है। और ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम क्या है, ये इनकमिंग मिसाइल को डिस्ट्रॉय करता है। जो भी ये इनकमिंग मिसाइल आते हैं ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम उनको डिस्ट्रॉय करता है। और ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है किसका, इजराइल का। और ये यूज करता है लाइक दैट ऑफ लेजर एनर्जी टू डिस्ट्रॉय द इनकमिंग मिसाइल। आपसे ये पूछा जा सकता है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम वाज इन यूज एंड इट बिलोंग्स टू विच कंट्री, दिस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बिलोंग्स टू द कंट्री दैट्स इजराइल, ठीक है। इसको बिलोंग करता है इजराइल को। और एक है आयरन डिफेंस मिसाइल सिस्टम ऑफ द इजराइल, ठीक है। कौन, आयरन डोम। अब हम बात करते हैं आईएनएस विक्रांत की। ये जो विक्रांत है, आईएनएस विक्रांत है, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया। कौन, आईएनएस विक्रांत। ये आपका अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, विच इज द फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया, दैट्स आईएनएस विक्रांत। और ये आईएनएस विक्रांत जो है इसको बिल्ड किसने किया है, इसको बिल्ड किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बिल्ड किया है। और ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे, इट्स इन केरला। कहाँ पे, केरला में। और जो आईएनएस विक्रांत है इट्स द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। और हम अगर विक्रांत की बात करेंगे, विक्रांत को संस्कृत में करेजस बोलते हैं, क्या, करेजस बोलते हैं। और आईएनएस विक्रांत जो है इंडिया का करेजस जो है एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। सो इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दैट विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया, दैट्स आईएनएस विक्रांत। गुड क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब बात करेंगे हम एक्सरसाइज मिलान की। देखिए बहुत सारी एक्सरसाइज करी जाती है, आर्मी ड्रिल्स की जाती है, नेवी ड्रिल्स किया जाती है, एयरफोर्स की तरफ से ड्रिल्स की जाती है। और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट जो एक एक्सरसाइज है जैट्स एक्सरसाइज मिलान। और अगर हम एक्सरसाइज मिलान की बात करेंगे, ये जो आपका एक्सरसाइज मिलान है ये इंडियन नेवी की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है। किसकी लार्जेस्ट एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी की लार्जेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज मिलान, ठीक है। और इसको कंडक्ट किया जाता है वंस इन 2 ईयर्स, हर 2 सालों में इसको एक बार किया जाता है। किसको, एक्सरसाइज मिलान को। याद रखना जो एक्सरसाइज मिलान है ये इंडियन नेवी की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है और इसको 2 सालों में एक बार किया जाता है, दैट्स एक्सरसाइज मिलान, ठीक है। अब बात करते हैं जो है आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉग्निसेंस व्हीकल, इसको हम AERV भी बोलते हैं, आर्मर्ड इंजीनियर रिकॉग्निसेंस व्हीकल। ये जो किसका है, ये किसका है, ये डीआरडीओ का है। अगर आप देखो ये इट्स लाइक दैट ऑफ टैंक। और इसका जो है AERV क्या है, ये कैपेबल है मेजरिंग द सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी ऑन रिवर बैंक्स। जो आपका सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी है किसमें, रिवर बैंक्स को, उसको डिटरमाइन करता है फॉर ए मोटरेबल मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। और ऑन गो नो गो बेसिस पे, ये जो गो नो गो बेसिस होता है ये क्या होता है, टू कंटिन्यू और स्टॉप ए कोर्स ऑफ एक्शन, या कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है एक कोर्स ऑफ एक्शन को। और जो ये AERV है इसको डीआरडीओ ने बनाया। और ये कैपेबल है किसको, मेजरिंग सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी जो रिवर बैंक्स है उनको डिटरमाइन करके क्या ये मोटरेबल फॉर मिलिट्री व्हीकल्स है ऑन गो नो गो बेसिस पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिसाइल प्रलय की। और जो आपका मिसाइल प्रलय है ये भी आपके न्यूज़ में था रिसेंटली, ठीक है। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक तो पूछा जा सकता है कि मिसाइल प्रलय क्या है। ये जो मिसाइल प्रलय ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इट मीन्स दैट ये जो लॉन्च किया जाता है लैंड और सी से लॉन्च किया जाता है और इसका जो वॉरहेड अपना टारगेट पे भेजना होता है, ये कहाँ पे भी भेजना होता है, सरफेस या
लैंड है, सी पे ही इसका टारगेट होता है। सो मिसाइल प्रलय इज ए सरफेस टू सरफेस मिसाइल। और अगर हम बात करेंगे मिसाइल प्रलय की, ये जो मिसाइल प्रलय है ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है। क्या? शॉर्ट रेंज मिसाइल है आपका मिसाइल प्रलय। और इसकी जो रेंज है 150 टू 500 किलोमीटर इसकी रेंज है किसकी? मिसाइल प्रलय की। और ये एक टैक्टिकल मिसाइल होता है। टैक्टिकल मिसाइल वो मिसाइल होता है जो आपके बैटल फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। और एक कितना वॉरहेड कैरी करता है? ये वॉरहेड कैरी करते हैं 500 टू 1000 kg ऑफ वॉरहेड ये कैरी करते हैं। कौन? मिसाइल प्रलय। और इसमें जो आपको याद रखना है कि मिसाइल प्रलय क्या है, ये जो मिसाइल प्रलय है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। हमारा मिसाइल प्रलय, अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, ये क्या ये हमारे सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स है। क्या है? हमारे सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है। और ये जो मिसाइल प्रलय ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, 150 टू 500 किलोमीटर रेंज है इसकी। एक टैक्टिकल मिसाइल है, बैटल फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। और ये कैरी करते हैं 500 टू 1000 kg वॉरहेड को कैरी करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मैन पैड्स की। ये जो मैन पैड्स है इसका ये कौन से है? मैन पैड जो है ये है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम किसका है? इंडिया का। और ये जो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का है, ये रिसेंटली इंडिया ने किसको दिया? यूक्रेन को दिया, बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर। और इंडिया ने ये ट्रांसपोर्ट किया कहाँ? यूक्रेन को ट्रांसपोर्ट किया। और ये जो मैन पैड्स है दीज आर पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। क्या है? ये पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। कौन? मैन पैड्स। और आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर दीज मैन पैड्स? दीज मैन पैड्स आर पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम। और इंडिया ने रिसेंटली इनको सप्लाई किया है कहाँ? यूक्रेन को। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर एंटीक्राफ्ट सिस्टम वेयर जस्ट सप्लाई टू यूक्रेन? उनमें से क्या है? मैन पैड वॉज सप्लाई टू यूक्रेन फ्रॉम इंडिया। ठीक है। और ये जो मैन पैड है, मैन पैड जो है ये मैन पैड भी आपका क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है आपका। क्या है? सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल है। कौन कौन आ गया आपका? पृथ्वी आ गया आपका, अग्नि आ गया आपका, ब्रह्मोस आ गया आपका, प्रलय आ गया आपका। और ये मैन पैड भी आपका सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है। अब बात करते हैं आईएनएस वैगशीर के बारे में। और जो आईएनएस वैगशीर है इसको वैगशीर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स नेम आफ्टर सैंड फिश, ए डीप ओशनिक प्रीडेटर ऑफ द इंडियन ओशन। उनको हम वैगशीर बोलते हैं। एक फिश के नाम पे इसको नाम रखा गया है आईएनएस वैगशीर। और ये जो वैगशीर है ये क्या है? इंडिया का बिल्ड, ये इंडिया का इट हैज़ बीन बिल्ड अंडर, इसको प्रोजेक्ट 75 के अंडर बिल्ड किया गया था। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम फ्रांस। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र कहाँ से की गई थी? फ्रांस से ट्रांसफ़र की गई थी आईएनएस वैगशीर की टेक्नोलॉजी। और ये इंडिया का 6th सबमरीन है इन स्कॉर्पियन क्लास। इंडिया का 6th सबमरीन है कहाँ पे? स्कॉर्पियन क्लास का इंडिया में इंडिया का 6th सबमरीन है। और इस स्कॉर्पियन क्लासेस के ये सबमरीन्स होते क्या है? ये वो सबमरीन्स है जिनको पावर किया गया है डीजल इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम के। जब डीजल इलेक्ट्रिक propulsion सिस्टम से इनको पावर किया गया है उनको हम स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन बोलते हैं। और ये आईएनएस वैगशीर जो है ये इंडिया का 6th सुपर सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास का ये सबमरीन बन गया। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम आयरन बीम की। ये जो आयरन बीम है ये कहाँ का है? आयरन बीम कहाँ का है? इट बिलोंग्स टू द इजराइल। और ये आयरन बीम जो है वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है। याद रखिएगा आयरन बीम इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी वेपन बेस्ड सिस्टम। और ये वेपन बेस्ड सिस्टम, एनर्जी वेपन बेस्ड सिस्टम क्या होता है कि ये डैमेज करते हैं टारगेट्स को विद हाईली एनर्जाइज्ड फोकस लाइट जो है विदाउट अ सॉलिड प्रोजेक्टाइल। और इसमें जो हम करते हैं कौन कौन से यूज़ करते हैं? इसमें हम लेजर्स यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव्स यूज़ करते हैं। अगर हम पार्टिकल बीम्स की बात करेंगे इसमें वो यूज़ होते हैं। अगर हम साउंड बीम्स की बात करते हैं इसमें ये वो यूज़ है। इट्स एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम दैट्स यूज। ठीक है। और ये इसराइल का है और ये वर्ल्ड का पहला एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम बन गया है। कौन? आयरन डोम। और ये यूज़ करता है लेज़र को टू शूट डाउन इट्स टारगेट्स। अगर कोई भी इनकमिंग मिसाइल आ रहा है और जो ये इनकमिंग मिसाइल इसराइल इन इनकमिंग मिसाइल को डिस्ट्रॉय करता है इन एनर्जी बेस्ड वेपन के से। और इसमें यूज़ किए जाते हैं लेज़र। और इस लेज़र की वजह से जो इनकमिंग टारगेट होता है उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं। और ये किसका है? ये इसराइल का है। और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आयरन बीम बिलोंग्स टू इसराइल। और इसमें यूज़ क्या होता है? लेज़र टू शूट डाउन इट्स टारगेट्स।
अगर हम बात करेंगे ब्रह्मोस की, सॉरी चीता की, प्रोजेक्ट चीता, ये जो प्रोजेक्ट चीता है ये भी कहाँ का है, इसराइल का। देखिए इन्होंने क्या किया है, अपग्रेडेशन ऑफ ह्यूरॉन ड्रोन्स है, जो ह्यूरॉन ड्रोन्स है उनको अपग्रेड किया है विद लेजर गाइडेड म्यूनिशन, दैट्स एम्यूनिशन, और इन ह्यूरॉन ड्रोन्स में अपग्रेड करके उनको लेजर गाइडेड जो है एम्यूनिशन उनको यूज़ किया जाता है, और ये भी किसका है, इसराइल का। और इट्स सेम दैट ऑफ लाइक ऑफ आयरन बीम, जो आपका आयरन बीम है उसी के जैसा ये भी है, कौन, प्रोजेक्ट चीता। और इनको क्या, प्रोजेक्ट चीता में क्या किया गया था, जो आपके ह्यूरॉन ड्रोन्स है उनको लेज़र गाइडेड एम्यूनिशन से उनको अब यूज़ किया जाएगा, और ये भी किसका है, ये भी इसराइल का है, ठीक है। सो लेट्स नो समथिंग अबाउट द ब्रह्मोस, व्हाट दिस ब्रह्मोस इज। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ब्रह्मोस, ये जो ब्रह्मोस है ये फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ऑफ द वर्ल्ड है। कौन सा, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल कौन है, ब्रह्मोस है। और अगर हम ब्रह्मोस की बात करेंगे, ये किसका जॉइंट वेंचर है, एक तो डीआरडीओ का है और रशिया का जॉइंट वेंचर है, कौन, ब्रह्मोस, ठीक है। एक तो रशिया का और डीआरडीओ का ये जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस, ठीक है। अगर आप ब्रह्मोस की बात करिए तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ये जो रैमजेट बेस्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस इज अ रैमजेट बेस्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। व्हेन वी टॉक अबाउट दिस रैमजेट क्या होता है, रैमजेट बेस्ड, ये एयर ब्रीदिंग जेट इंजन होता है, दैट यूज द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द इंजन टू प्रोड्यूस द थ्रस्ट, दैट यूज द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द इंजन टू प्रोड्यूस द थ्रस्ट, दैट्स कॉल्ड द रैमजेट। और ये सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक क्या होता है, ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। क्या, ये जो ट्रैवल करता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये फास्टर ट्रैवल करता है देन द स्पीड ऑफ द साउंड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मोस की, ब्रह्मोस जो है ये दो नदियों के नामों से बना है, एक तो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा। मॉस्कोवा कहाँ का है, रशिया का है। सो ब्रह्मोस, BRH ब्रह्म एंड MOS, सो मॉस्कोवा एंड ब्रह्मपुत्र दो रिवर्स के नेमों से बना है ब्रह्मोस, ठीक है। ये जो बेस्ड है ब्रह्मोस जो बेस्ड है, ये रशिया के एक सुपरसोनिक एयर एंटी शिप क्रूज मिसाइल पे बेस्ड है, जिसे हम P800 ऑरिक्स भी बोलते हैं, उसी पे ये ब्रह्मोस मिसाइल बेस्ड है। और ये जो है इट्स अ रैमजेट बेस्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये क्या, रैमजेट बेस्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, कौन, ब्रह्मोस है। ये डीआरडीओ और रशिया का जॉइंट वेंचर है, और इट इज़ डेवलप्ड बाय इन कोलैबोरेशन विद रशिया, इज द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है दुनिया का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। और अगर हम ब्रह्मोस की बात करेंगे, जो ब्रह्मोस की रेंज जो ब्रह्मोस की है 100 to 500 किलोमीटर्स इसकी रेंज है, किसकी, ब्रह्मोस की, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द ब्रह्मोस।